So okay guys, let us read the passage. So we are going to do English language literature पेपर ऑफ 2019. देखो इस तरह का पेपर के बहुत प्रोबेबल चांस है कि यही पेपर आएगा आपका एग्ज़ाम में. बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब यही नहीं, आई मीन टू से दैट कि इस पैटर्न का पेपर आएगा, राइट. सो पैटर्न ऑफ द पेपर इस फॉर्मेट यही है, और इस तरह का एक ये सॉल्ट हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा. ठीक है, चलो पैसेज पढ़ते हैं. ये प्रीवियस ईयर आपने देख लिया. A new twist on the extreme weight loss is catching on many parts of the world. It's called keto diet. The keto diet is an extremely low or no carbohydrate diet that forces the body into a state of ketosis. एक तो ना पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल एकदम क्लियर माइंड से पढ़ना है. ठीक है, क्या एक बार पहले या तो क्वेश्चंस पढ़ा देती हूँ मैं आपको, जिससे आपको आंसर एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ, और आपके पास ना टाइम बहुत कम होगा तो फटाफट पैसेज पढ़ना है. ठीक है, ओके गाइस, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ये देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है कि कीटो डाइट होता क्या है, देन बेनिफिट्स क्या हैं कीटो डाइट के अनसीन पैसेज की तरह, क्लेम्ड बाय इट्स प्रोपोनेंट्स 2 नंबर, और एडवाइस फॉर द ब्राइड्स, यस ये भी 2 मार्क्स का ये 3rd क्वेश्चन. 4th पार्ट है 5 नंबर का, ये 5 नंबर का, ये 2 2 4 और 1 5, और ये 15 नंबर का पैसेज है. तो लास्ट जो क्वेश्चन है, हु टेल्स अस टू स्टे अवे फ्रॉम फैशन मैगजीन्स एंड वाई, एंड अ वेट ओबेस सोसाइटी क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर इटसेल्फ. यस, कमेंटेड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फटाफट. सो कीटो डाइट की बात कर रहे थे. एक न्यू ट्विस्ट आया है. कीटो डाइट क्या है? सो क्वेश्चन ये था ना, द कीटो डाइट इज़ एन एक्सट्रीमली लो और नो कार्बोहाइड्रेट डाइट दैट फोर्सेस द बॉडी इनटू द स्टेट ऑफ कीटोसिस, एंड कीटोसिस दिस अकर्स व्हेन द पीपल ईट लो or no carb diet, and molecules are called ketones which build up in their bloodstream. Yes, okay. So low carbohydrate level cause the blood sugar level to drop. मतलब बहुत ज़्यादा डाइटिंग करो तो यार ये कॉमन बातें हैं, पता है, ब्लड शुगर लेवल आज का कम हो जाता है ना. People promoting the diet says that it uses the body's own fat burning system to help people lose significant weight in as little as the 10 days. Okay, so understand this. Now keto diet was created by Dr. Gianfranco Capillo, an associate professor of surgery at the Sapienza University in Rome, Italy. Right now, Better Clean, a registered dietitian at the Cleveland Clinic Children's Hospital, has used the keto diet for years to help ease the symptoms of children with epilepsy, although experts are not quite sure why it works. So proponents say that the diet can produce quick weight loss and provide the person with more energy. ठीक है, ऑल राइट. तो प्रोपोनेंट्स का कहना है कि डाइट जो है वो क्विक वेट लॉस में हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है पर्सन को बहुत ज़्यादा एनर्जी से, राइट. नाउ हाउएवर सम प्रैक्टिशनर्स लाइक रूडी मार्वर, तो हाउएवर कुछ प्रैक्टिशनर्स हैं जैसे कि रूडी मार्वर, स्पोर्ट्स न्यूट्रिनिस्ट है ना, हैव ऑल्सो फाउंड द सक्सेस विद कीटो टाइप ऑफ डाइट. राइट, अंडरस्टैंडिंग हो रही है पैसेज की? ईजी है. नाउ ही सेड दैट ही यूजेस दिस लो कार्ब अप्रोच with some people who have trouble in the weight loss thing, right, losing weight, and he has also high performing athletes on the plan. ठीक है. Now moving further, so Marver concedes that there are some drawbacks. He said that diet would not necessarily improve athletic performance, a fact that may discourage some athletes.
He added people need to adhere closely to program or it will not work. So it is a very strict diet, said Mao. You have to do everything right. So every individual he notes is different and will react differently to such program. Melinda Hamilgara, a registered dietitian in Colombia, host of the Food Silo radio show, is somewhat cautious in her approach. So उनकी approach क्या थी कि anyone thinking of going on a fat diet to keep food in perspective. Yeah, it's a gift. So it's how we nourish ourselves. So यहाँ पे डिपेंड करता है हम अपने आप को कैसे नरिश करते हैं और मतलब स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं. Now, marketing this diet to brides just play our weight obese society according to Hamilgram. ब्राइड्स को ज़्यादातर ये ना मार्केट में बहुत एक मार्केटिंग है ये वेट ओबेस सोसाइटी के लिए. इंस्टेड एनीवन प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज शुड नरिश हरसेल्फ वेल एंगेज इन प्लेंटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी चाहिए, राइट. सो गाइस, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, बाइक राइडिंग करो, है ना. एंड फ्रेश फील करने के लिए आप फ्रेश फूड्स खाइए, ऑर्गेनिक फूड्स. तो कोई मैजिक बुलेट नहीं है एक लॉन्ग टर्म वेट लॉस के लिए, है ना. तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि कोई भी एक मैजिक बुलेट नहीं है, हम सब जानते हैं वेट लॉस के लिए. सो keto diet has worked successfully on the same cancer patients in conjunction with chemotherapy to shrink the tumors and to reduce the seizures. Okay. So now, but when it comes to the long-term weight control, a Mediterranean style diet focused on fruit, vegetable, whole grains, beans, fish, olive oil, and is one that can be healthy for life. So we fall prey to wacko diets, but the truth is that there is no quick fix. So cutting refined carbs and replacing them with fresh foods and lean protein, cutting the processed food and avoiding too many additives will keep you healthy in the long term. Okay. सो अगर आप ये सब करेंगे, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल खाएंगे, तो आप लॉन्ग टर्म हेल्दी रहेंगे डेफिनेटली. सो लीज़ा, क्लिनिकल डाइटिशियन, उन्होंने भी आर्ग्यूमेंट दिया है कि जो हेल्दीएस्ट अप्रोच है वेट लूज की वो है कि आप रियलिस्टिक गोल सेटअप करें कि आप जितना कंप्लीट कर सकते हैं. सो दैट विल बी गुड फॉर योर लॉन्ग टर्म कंडीशन एंड इट शुड इंक्लूड योर एक्सरसाइज and long-term healthy goals. And last line जो है देखो important, जिस पे क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा भी कि stay away from fashion magazine. ये जो फैशन मैगजीन है ना, इनसे तो दूर ही रहिए because they make us feel inadequate. हमें अपने आप में inadequate feel कराते हैं. And if you are even considering their insane approach to weight loss, then go for a walk right now. It will clear your head. ठीक है गाइस, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चंस को. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स आंसर देम. कीटो डाइट क्या है, हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था. एक्सट्रीमली लो और नो कार्बोहाइड्रेट, आंसर लिख सकते हैं. और बेनिफिट्स ऑफ द कीटो डाइट एज प्रोपोनेंट्स ने कहा था डाइट कैन प्रोड्यूस क्विक वेट लॉस एंड प्रोवाइड अ पर्सन विद मोर एनर्जी. ओके. एडवाइस फॉर ब्राइड शुड नरिश हर सेल्फ, एंगेज इन प्लेंटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. और ये एज इट इज़ अ पैसेज से किसने बताया कि फैशन मैगजीन से दूर रहें, ये हैमलगन ने. वाई, बिकॉज दे मेक अस फील इनएडिक्वेट. 5 मार्क्स का है तो इसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है. यू नीड टू डिस्क्राइब इट मोर. ठीक है. एंड वेट ओबेस सोसाइटी क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर इटसेल्फ. देखो मीडिया और सेलिब्रिटी जो हैं वो एक एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेशर डालते हैं वुमेन पे कि वो अपनी फिगर को मेंटेन करें. एंड चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक
ये आपको जैसे अगर कोई पैसेज भी कल को लिखने को आता है तो आप लिख सकते हैं. We are bombarded with images of thick, skinny women. And this is the way almost everyone wants to look like. Although there are other factors, the media is the primary source of obsession with being thin. बहुत ज़्यादा thin होने के लिए. So, मीडिया जो है बहुत ज़्यादा आउटस्ट्रेस करती है इन्फ्लुएंसर्स to the point and which give an impact to younger generation towards their physical appearance, and the combined emphasis on food appearance denote the commercial influence in eating disorder. So eating में बहुत ज़्यादा disorder होता है और worry is that their thighs are too flabby, their breasts are too small and arms are too scrawny and their face is too chubby. The body build is too small and any body part can becomes the focus of this obsession. Okay, तो आप देख सकते हैं इसी तरह से जो डाइट कल्चर है बहुत हार्म कर रहा है. और फास्ट एंड ईजी वेट लॉस, वाइल देयर मे बी ट्रू, रैपिड वेट लॉस इज़ वेरी डेंजरस. द फास्ट और ईजी वेट लॉस तो चलो फिर भी अलग बात है, बट जो रैपिड वेट लॉस है ये बहुत डेंजरस है एंड नॉट सस्टेनेबल. When you lose weight over a short period of time, you burn fat faster and which lead to ketosis. Ketosis से शुगर लेवल भी कम हो जाता है. ठीक है. And high level of ketones in the blood and urine can be very toxic. So losing weight too fast also mean muscle becomes a key source of energy. And more muscle work to burn energy and smaller they become, more they become weaken. ठीक है ना. तो इससे आपको एक लेसन भी लर्न हो गया और आपका पैसेज भी हो गया कंप्लीट. चलिए क्वेश्चन 2 पे आते हैं. सो अभी हमने पता है पहला पैसेज पढ़ने में ही अभी तो आंसर्स थे तो हमारे को 15 मिनट हमने लगाए अप्रॉक्सीमेट. तो आपको इसलिए हाफ आवर लगेगा टोटल पैसेज पढ़ने के साथ और आंसर लिखने के साथ. क्वेश्चन 2 ये जल्दी से कर देंगे. देखो समर जो अब आपको यहाँ पे वो लगना फिल इन द ब्लैंक. समर एट इट्स पीक अक्रॉस द कंट्री व्हेन आई वाज डैश. सो समर इज एट पीक, आंसर लिखते चलना. एंड व्हेन आई वाज डैश थ्रू मेघालय, आई वाज ट्रेवलिंग थ्रू मेघालय. सिंपल है. नाउ fatigue dash at the bay there abode of the cloud. मेन फोकस करते fatigue at the bay in this abode of clay. So fatigue remain. So as the name of the state literally meant या meant या means मतलब meant या means literally means at one point weather and the vegetation suddenly started changing and we were greeted by an overcast sky and short drizzle. Okay, the noun locally referred to Sahara sits on plateau. Its gorges remain dash with lush greens, covered with lush greens and waterfalls. While admiring the picturesque view, my sight on the basket neatly arranged with tennis ball side fruit. So my side fallen, my side fell या fell तो गलत है, fell फिर भी ठीक है, fell ठीक है. Now I dash down to take a closer look. Bend या bent now. I later came that the Sophie which belongs to मायरे के फैमिली. I later came to है ना तो टू के साथ सिंगुलर मतलब सिंगल नहीं, मीन टू से दैट कि टू के साथ नो आएगा फर्स्ट फॉर्म. ओके लास्टली देखिए इट्स वेरिएंट्स कॉल इन मीजो मेंटिंगा. सो इट्स वेरिएंट्स
डैश कॉल्ड, आर कॉल्ड। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखते हैं। 5 नंबर इसके, इसमें भी एरर निकालने हैं 5। सो द प्लैनेट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर हैज़ राइज अबाउट, फर्स्ट लाइन में एरर देखो, प्लैनेट का एवरेज सरफेस टेम्परेचर हैज़ राइज अबाउट 1.6 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट सिंस, सो हैज़ राइज नहीं, राइजन। पूरा पैरा लिखना है ये और करेक्शन करनी है और अंडरलाइन भी करनी है। ठीक है, सो दिस चेंज हैज़ बीन ड्राइव लार्जली बाय द इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ह्यूमन मेड एमिशंस इनटू एटमॉस्फेयर। सो यहाँ पे देखते क्या गलती है, दिस चेंज हैज़ बीन ड्राइव लिखा है, हैज़ बीन के साथ क्या आएगा भाई, सिंपल ड्राइवर। ओके, मोस्ट ऑफ द वार्मिंग अकर्स इन past 35 years with 5 warmest years on the record taking place since 2010। क्या मिस्टेक है देखते हैं, मोस्ट ऑफ द वार्मिंग अकर्स, ये देखो अकर्स लिखा है, क्या आएगा, अकर्ड। टेंस वेंस का ही प्रॉब्लम आएगा इसमें, मैंने सिलेबस का बताया ना आपको। ओके, डी पार्ट, नॉट ओनली वॉज 2016 वार्म ईयर ऑन रिकॉर्ड बट 8 of 12 months दैट मेक अप ईयर फ्रॉम जनवरी टू सेप्टेम्बर विद एक्सेप्शन ऑफ जून। तो ओके, यहाँ तक आप देखो क्या एरर है, खुद एक बार पढ़ो और चेक करो, पॉज द वीडियो एंड चेक इट। आपको पहले खुद करना चाहिए था, अभी आपको थोड़ा सा ग्रामर कंफर्म होगी। देखो, नॉट ओनली वॉज 2016 द वार्म ईयर ऑन रिकॉर्ड, नॉट ओनली warm year on record but 8 of 12 months that make up the year with the exception of June was the warmest on record for those respective months। okay, so not only was 2016 year on record, so यहाँ पे not only, ये थोड़ा सा कलर लग रहा है ना, ये वाला एरिया ही, not only 2016 is the warm year on record, बाकी सब सही है। okay, now an evidence for the rapid climate change is compelling, तो for नहीं, an evidence of आएगा। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन बढ़ते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन 3 पे बढ़ते हैं, अब और 9 नहीं वेस्ट करते। ये है पोएट्री का क्वेश्चन हमारा। ओके, लेट्स रीड द पोएट्री। It's Friday night. The unfettered city resounds with hedonic glee. John feels a cold cast of self-pity envelop him. No family cushions his solitude, or rather, his mother's dead, his English father, retired in his native Kent, rarely respond to letters sent. If rarely by his transatlantic offspring, in letters to the Times, he rails against the nameless crimes of the post office, waxing frantic about delays from coast to coast. He hones his wit and diamonds of post. Okay, so भाई it's Friday night, the unfettered city, 2-3 बार पोएम पढ़नी पड़ती है, ऐसे समझ नहीं आती है थोड़ी, ठीक है ना। देखो, so it's Friday night, the unfettered city resounds with hedonic glee। कह रहे हैं भाई फ्राइडे की नाइट है, थोड़ा बहुत पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। अनफेटर्ड सिटी है जो रीसाउंड कर रही है कोई हेडोस्नेटिक ग्लीक से। तो जॉन फील कर रहा है कोल्ड
कास्ट, जॉन है, फील कर रहा है कोल्ड कास्ट ऑफ सेल्फ पिटी एनवेलप हिम. नो फैमिली cushions in his solitude, or rather his mother's death. His English father, retired in his native Kent, so rarely respond to letters sent. Okay, तो ये जो जॉन है मेरे ख्याल कुछ इनके मदर फादर का मतलब सेटअप अगर हम देखें पोएम का, तो वो रेयरली रिस्पॉन्ड करते हैं लेटर को जो भेजते हैं. इफ़ रेयरली बाय हिज ट्रांसलांटिक ऑफस्प्रिंग. सो इन द लेटर टू द टाइम्स ही रेल्स अगेंस्ट द टू द लेटर्स टू द टाइम्स. कैसे बनाइए पोएम देखो. ही रेल्स अगेंस्ट द नेमलेस क्राइम्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस, waxing frantic about the delays from coast to coast. He haunts his wit and diamonds to the post. चलो आगे पोएम पढ़ते हैं, कुछ समझ आता है देखते हैं. A linkless node, no spouse or sibling, no children, John wanders alone into an ice cream parlor, nibbling देखो पोएट्री आपको आनी तो है, तो आप ध्यान से ज़रा सीखो कैसे पढ़ रहे हैं हम ऐसे. हाँ. निबलिंग द एजेस ऑफ द शुगर कोन बाय टर्न्स अ पेयर ऑफ हाई स्कूल लवर्स स्टैंड गिगलिंग. जॉन अनचार्म्ड डिस्कवर्स हिज फेवरेट फ्लेवर्स. Pumpkin pie and bubble gum decides to buy. A double scoop sits down, but when his eyes fall on the knot of 3 schoolgirls, a clamorous family, are munching cheerfully together, a hippie and a Castro clone, it hurts that only he's alone. He thinks back to his day at college, to Phil, to Berkeley friends, to nights when the pursuit of grades and knowledge founded in buried jokes and fights. Fugaces, Silicon Valley lures to ambition's ulcer alley. तो ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा. आप थोड़ा सा लिंकेज आगे देखते हैं. Okay, young graduates with siren screams of power and wealth beyond their dreams, ejects the lax and drives the driven, burning their candles at both ends. Thus files take precedence over friends, labor is lauded, leisure driven. John kneels bareheaded and unshod before the chip, a jealous god. ओके, चलो आगे बढ़ देखते हैं. सो ज़रा क्वेश्चंस पे अपना ध्यान दीजिए अब थोड़ा. ओके, क्वेश्चन 1 है कि द कैरेक्टर डिस्क्राइब्ड इन द स्टैंजा 1 इज फीलिंग. कैरेक्टर जो पहले स्टैंजा में दिखाया गया है वो हैप्पी फील कर रहा है क्या, सैड या गुस्से में है या डिस्गस्टेड है. सो भाई वो सैड फील कर रहा है. वेरी सिंपल ये. Now, who has been described in the line, he haunts his wit and dampens the post. Yeah? So, कौन है? जॉन है. जॉन के पापा जी हैं. जॉन या ऑफस्प्रिंग है. तो भाई जॉन्स फादर, दैट्स द आंसर. जॉन के फादर कहाँ रहते हैं? नेटिव कैंट में. चलो जी, ये भी हो गया. अब एक आपको कंट्रास्ट ड्रॉ करना है ओपनिंग लाइन ऑफ स्टैंजास के बीच में. एक एक काइंड ऑफ आपको कंट्रास्ट ड्रॉ करना सीखना है. सो देखते हैं हम. चलिए देखो कंट्रास्ट देखो.
It's Friday night. People are enjoying their weekend, and people are happy with their family and friends. John is all alone with cushions of solitude and feels a cold cast of self pity. He writes to his father, but he never responds. ठीक है ना? Okay. Next, देखो describe the John experience in the ice cream parlor में क्या experience था. एक तो ये हो गया 4 नंबर का, ये एक एक नंबर के थे. Now, तो एक्सपीरियंस क्या है कि जॉन जब एंट्री करता है आइसक्रीम पार्लर में, थोड़ा सा ये तो समझ आ रहा था पढ़ने से पोएम ही, तो वो देखता है एक पेयर ऑफ स्कूल लवर्स होते हैं, स्टैंड कर रहे होते गिगलिंग. एंड बाद में वो 3 स्कूल गर्ल्स को भी देखता है, वो एक ग्लैमरस फैमिली की तरह होती हैं, इन्जॉय कर रही होती हैं मंच टुगेदर. और वो अपने आप को बहुत अलोन फील करता है, राइट. तो इसे बहुत ही हर्ट फील होता है एंड ही फील्स दैट ही इज़ वेरी अलोन इन द आइसक्रीम पार्लर. Now, what promise does the Silicon Valley, ये जो था लास्ट पैरा में सिलिकॉन वैली के बारे में आया था ना. हाँ, लाइन आई थी. फाउंडेड इन बेरी जोक्स एंड फाइट, सिलिकॉन वैली लियोस टू एम्बिशन सोलर वैली. तो क्या उसको जब यंग ग्रेजुएट्स की क्या मतलब प्रॉमिस था वो. तो सिलिकॉन वैली ने प्रॉमिस किया था कि यंग ग्रेजुएट्स विद पावर एंड वेल्थ and which they can't imagine in their dreams. People become so ambitious that files take the precedence over friends. तो people जो है कुछ ज़्यादा ही ambitious जब हो जाते हैं ना, तो वो फ्रेंडशिप सब उस समय ख़त्म हो जाती है. तो सिलिकॉन वैली ने प्रॉमिस किया था कि वो पावर और वेल्थ देगी विच दे कांट इमेजिन. सो ये हमने डिस्कस कर लिया. ओके, क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं. अब देखो, मोस्ट ऑफ अस, ये क्वेश्चन 4 भी आंसर पैसेज है, जल्दी से पढ़ेंगे. एक बार देख लो, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करती जाऊँगी, आप पढ़ते चलो. तो बहुत सारे लोगों ना, आई विल अंडरलाइन इट एंड देन वी विल डिस्कस. कि पहले पैरा में ये क्या अर्थमेटिक की बात हो रही है, और बस बेसिकली इतना ही है कि भाई समझ आ रहा है सिंपल कि रामानुजन एक बहुत ही बेस्ट स्टूडेंट थे मैथमेटिक्स के. अर्थमेटिक की बात हो रही है. तो रामानुजन पे पैसेज है, आगे बढ़ते हैं. इंडियन स्टूडेंट कहाँ रहते हैं यही सब बता रखा है. इसमें मैं आपको क्या पढ़ के बताऊँ. एज ऑफ 13, के 23rd की एज तक उनको डिस्कवरी वगैरह करनी आ गई थी. ओके, तो इसमें क्या है, जैसे कि डिस्टिंग्विश प्रोफेसर के बारे में बता रखा है हार्डी, और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था रामानुजन की थ्योरम्स को. ठीक है. और ऑल दिस ऑल्दो मोस्ट रामानुजन थ्योरम्स वर मेयरली स्टेटेड एज अ फैक्ट विद नो फॉर्मल प्रूफ. कोई प्रूफ वगैरह खास उनको नहीं करे थे उन्होंने. बट इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ द यंग इंडियन हैड प्लग द रिजल्ट्स रेडीमेड फ्रॉम सम. एक रेडीमेड रिजल्ट्स उन्होंने निकाले और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी. नाउ आगे.
सो ये सब जो है रिकॉग्नाइज किया गया। आफ्टर द मंथ्स ऑफ डेलिब्रेशन एंड कंसल्टेशन रामानुजन फाइनली डिसाइडेड टू एक्सेप्ट हार्डी जी ने एक ऑफर दिया, अरेंज टू ब्रिंग द रामानुजन टू इंग्लैंड। इंग्लैंड जाने का 17 मार्च ये सेट आउट द शिप। तो once in Cambridge, the young Indian about working on hundreds of new theorems. Okay, although he was now insolent in the world pure mathematics. the overview ले लिया। लास्ट पैरा देखो, सैडली रामानुजन नेवर रीगेन्ड हिज हेल्थ एंड ही डायड। बस तो ये ओवरव्यू है पैसेज का। क्वेश्चंस देखो, व्हाट इज़ द स्टोरी बेस्ड ऑन समवन लाइफ कॉल्ड। तो किसी की लाइफ पे स्टोरी बेस्ड होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसका आंसर दीजिए आप। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे बायोग्राफी थी बेसिकली, इट्स वॉज अ बायोग्राफी, है ना, समझ आ गया। एंड ओके, आउट ऑफ ब्लू इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। आउट ऑफ ब्लू किसका एग्जाम्पल है? सिमिली है, ईडियम है, क्या है पहले तो ये बताओ। सिमिली है या ईडियम है? सिमिली तो है नहीं, आउट ऑफ ब्लू एक ईडियम है, तो इसका मतलब क्या होता है इस ईडियम का? आउट ऑफ ब्लू यानी हैप्पी या फिर अनएक्सपेक्टेड, इन दोनों में से कोई मतलब होगा। तो आउट ऑफ ब्लू मतलब हैप्पी तो नहीं हुआ, आउट है ना, तो अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। ओके, हमें कैसे पता कि रामानुजन एंटरप्रेसिंग कर रहा था? ये आंसर देखिए, रामानुजन वॉज कन्विंस्ड दैट ही वॉज मेकिंग इम्पॉर्टेंट न्यू डिस्कवरी इन मैथमेटिक्स एंड वॉज एंटरप्रेसिंग एनफ टू राइट अ लेटर टू द कैम्ब्रिज प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स G.H. हार्डी। जी हार्डी कौन थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? तो वो एक एमिनेंट प्रोफेसर थे। उन्होंने रिकॉग्नाइज की रामानुजन की थ्योरम को और उन्होंने अरेंज किया कि इसे इंग्लैंड बुलाया जाए। प्रॉब्लम in the private life of Ramanujan, he was an Hindu and Orthodox Brahmin traveling to foreign land, presented many cultural difficulties, not least in regard to his strict diet. He has trouble in the correct ingredients for meal and religion. He became homesick and eventually Ramanujan was confined to a nursing home to await to return to India. Right? ओके, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, देखो कंप्लीटली जो क्वेश्चन 5 है ना, इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं ये 3 में से, और मैंने बताया था ना 20 मार्क्स ऐसे। पहला क्वेश्चन जैसे है पहले पैसेज से कि रोल ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्लान डाइट फॉर योर पेरेंट्स टॉकिंग इन कंसिडरेशन इन योर फूड प्रेफरेंस। एक तो ये आपस में मतलब एक आपको डायलॉग राइटिंग ऐसे आ जाती है। फिर दूसरा है री राइट करनी है पोएम, पॉइंट ऑफ व्यू पर जॉन के फादर का लेना है, फ्राइडे नाइट वाली जो पोएम थी। और जी हार्डी आप इमेजिन करो अपने आप को और लेटर इनवाइट करो रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कि आप आओ हमारी मैथ्स पढ़ो यहाँ पे, राइट। चलो तो देखते हैं फटाफट। ये ए 2 पर्सन्स हैं, बात कर रहे हैं आपस में। डॉक्टर, व्हाट आर द सम थिंग्स दैट आई कैन डू टू स्टे as healthy as I can be? So you need to eat, डॉक्टर बोलेंगे, healthy foods and avoid unhealthy food item. Yeah, sometimes I don't know what the best foods are, so fresh vegetable are very important along with protein. तो इस तरह से कुछ बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये पूछ रहे हैं वो कि what things should I avoid, अवॉइड क्या करना चाहिए? तो you don't want to eat food that is high in fat, so you need to avoid caffeine and sugar. बेसिकली आपको कैफीन और शुगर को अवॉइड करना है, ठीक है। सो बियॉन्ड डाइट व्हाट एल्स कैन आई डू टू बी हेल्दी? तो 30 मिनट्स एक्सरसाइज कीजिए डेली, एंड यू स्मोक देन स्टॉप इट। सो हैव यू बियर, हाउ अबाउट हैविंग अ बियर एट द वीकेंड? तो क्या मैं मतलब बियर वगैरह का वो पूछ रहे हैं। So less than serving of alcohol a day can actually be good for you. How much water we should drink as it increases the urination problem also.
तो पूछ रहे हैं कि हाउ मच वाटर वी शुड ड्रिंक। वाटर का क्या सिस्टम है? वाटर का कुछ नहीं है, 15 ग्लास वाटर पीना चाहिए डिहाइड्रेशन अवॉइड करने के लिए। व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड वी ईट सो दैट कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ना हो? तो डोंट ओवरलुक द फूड टू मेक इट सॉफ्ट, बाय डूइंग सो वन डिस्ट्रॉयड द वाइटल न्यूट्रिएंट। सेलेक्ट द फूड विच नीड लेस टाइम टू कुक एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, स्ट्रेच एंड डू योगा। ठीक है, अब जो फ्राइडे नाइट वाला क्वेश्चन था ना, उसमें आपको क्या करना था कि जॉन के फादर के अकॉर्डिंग बताना था। तो उसमें यही है आंसर, इट्स फ्राइडे नाइट, पीपल आर एंजॉइंग द वीकेंड, बट आई एम हेयर अलोन वेटिंग फॉर माई सन जॉन। तो अब वो जॉन के फादर कह रहे हैं, आफ्टर हर मदर डाइड, लिविंग अलोन इन द नेटिव कैंट, I have sent so many letters to John, but he never respond, or maybe he don't care about it. After he entered into Silicon Valley with the ulcer of ambition that this young people doesn't care about family and friends. They are under ego of power and wealth, which is beyond their dreams. So their files and work is taking the precedence over friends and family, but they are not realizing that their real wealth is their family and people. So one should keep a balance in life so that there will be no regrets later. Hope my son understand and come back to me. Yeah, ये हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो रामानुजन को लेटर भेजना है कि भाई डियर रामानुजन, आई एम प्रोफेसर हूँ, मैं ऐसे ऐसे प्रोफेसर बोल रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ। आफ्टर लुकिंग, आप देख सकते हैं आंसर लिखा ही हुआ है, एट योर रिसर्च इट शो दैट योर थ्योरम आर अनयूजुअल एंड विच शो मी दैट यू आर अ प्योर जीनियस एंड betrayed an extraordinary originality. So it's almost as if young Indian had plucked the result ready-made from the abstract prelim. मतलब वही पैसेज से लाइन उठाई है इन्होंने। Seeing your genius and I am inviting you to the university. I am sending you the tickets, arranging your boarding and lodging. It will be a great privilege to work with such genius. Waiting eagerly, your affectionately, and ये तो फॉर्मेट ये समझ में आ गया। ठीक है, डियर रामानुजन और लास्ट में उन्होंने ये फॉर्मेट, ठीक है, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फॉर्मेट लिखेंगे तो आप डियर रामानुजन से पहले क्या लिखेंगे, सेंडर एड्रेस, जिसमें आप लिख देना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, जो लास्ट में लिखा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये लिख देना, फिर आप डेट डाल देना और फिर ये इस तरह से। So I hope this lecture must be helpful for you. Thank you guys.